नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जो दोस्तों, हम सब सीतायन की कथा के साथ, माँ सीता की चेतना के साथ जुड़कर हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे। और हमें ध्यान की यात्रा में ले चलेंगे अर्पणा जी। तो उनका स्वागत करते हैं। अर्पणा जी, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए तैयार होते हैं। जिन्होंने चश्मा पहना है उसे उतार लें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, जहाँ भी आपको ठीक लगे। सुखासन में बैठना है। अपनी उंगलियों को आपस में क्रॉस करें, लेग को क्रॉस करें, आंख को धीरे से बंद कर लें और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसें। अपनी सारी जागरूकता को अपनी सांसों पर टिका दें। सारे लोगों, परिस्थितियों, भावनाओं को इस पल के लिए छोड़ दें। My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India and the rest of the world. Today we are sitting in meditation. We are in meditation. Don't open your eyes. Be with the breath. What a great day today. A day when we are in deep meditation. Every day should be in deep meditation. 1 hour, 2 hours, 3 hours, every day we should spend with closed eyes in our chosen spot, in our own house, in a darkened room. Some nice fragrances around, nice perfumes around. In total darkness, a nice comfortable seat, totally relaxed, crossed legs, crossed feet, crossed hands, crossed fingers. No sounds whatsoever in the mouth and no forms whatsoever in the mind. Being with the breath.
Eyes are closed, my dear friends. No thoughts in the mind. The first law of the science of meditation says when you are with the breath, the mind becomes empty. So, let us all be with the breath. The breath is the reigning deity in meditation. My dear friends, my dear masters, and my dear gods, meditation is the most important thing which energizes our body, which energizes our mind. My dear friends, don't open your eyes, come what may. What a wonderful thing meditation is. Every child, every youth,
every adult, every oldie, everybody should meditate every day. 1 hour, 2 hours, 3 hours. Please don't open your eyes. माँ सीता, माँ वसुंधरा और डेना मरियम की एनर्जी का आह्वान करें। उनसे कनेक्ट होकर उनकी एनर्जी के साथ ध्यान करें।
My dear friends, my dear masters, and my dear guides, remember that we are always guides. Remember that we are masters. We create our own realities. We designed our own lives. We are ever the master of our own lives. And we are here to be friends with each and every life form. Friendship is the natural state of affairs between life forms in the whole cosmos. And every life form is a master unto its own self. And every life form is a god unto its own self. My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India, and the whole world, we are all in meditation. Meditation means being in total emptiness of the mind. No waves whatsoever. No thoughts whatsoever. Like an absolutely calm lake. My dear friends, be with your breath. The breath is the key word. Be with the breath.
1 मिनट और। अपने आप को ध्यान से वापस लाने की तैयारी करें। थर्टी सेकेंड। ट्वेंटी। 10, 5। हथेली को खोलकर बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। म्यूजिक बंद कर दें प्लीज। चलिए मास्टर्स, ध्यान की क्लास के बाद ज्ञान की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने पीछे स्टोरी सुनी होगी कि किस तरह से माता सीता जंगल में चंद्रिका नामक युवती से मिलती हैं, जिसको शूर्पणखा ने उसके पति को भ्रमित करके बरगला कर वहां से ले जाती है और बाद में उसके पति की भी हत्या हो जाती है। यह कहानी आप हम तक पहुंचाई जा रही है अनुसुईया के द्वारा। अनुसुईया जो डेना मरियम की इस बुक में दूसरा जन्म है और अनुसुईया को सोमा बता रही है यह कहानी। जब तक अनुसुईया जीवित थी मीनाक्षी के रूप में अपने पिछले जन्म में, उसने अपने पिछले जन्म की कहानी को बताया और उसकी मृत्यु के बाद यह कहानी सोमा उसे बता रही है, जो माता सीता की दूसरी दासी थी। जैसा कि आप जानते हैं सोमा को यह कहानी कैसे पता चलती है कि जंगल में क्या हो रहा है। माता सीता ने उसे एक बाउल दिया था, जिसमें एक कटोरा, जिसमें उन्होंने एक मंत्र जाप करके एक अग्नि प्रज्वलित की थी। उसी अग्नि को देख सोमा को उसमें से दृश्य दिखते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। तो उनको दृश्य दिखते थे, तो इस तरह से वह उनको पता चलता है सोमा को कि जंगल में क्या हो रहा था। और आगे की कहानी में हम जानेंगे कि जब माता सीता लंका जाती हैं, जो कि इसी में वर्णित है, जिस एपिसोड की अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो उस कहानी में माता सीता जब लंका जाती हैं तो रावण के हरण करने के पश्चात उनका संपर्क टूट जाता है सभी से। भगवान राम से टूट जाता है तो फिर सोमा से तो टूट ही जाता है। तो फिर उसके आगे की कहानी मैं ये अभी इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है मुझे शायद बाद में याद ना रहे। उसके आगे की कहानी जब माता सीता लंका जाती है तो उस कहानी को हनुमान जी बताते हैं। माता सीता ने अपनी कहानी, अपने पराक्रम की कहानी, अपने त्याग की कहानी, कितने दुख उन्हें झेलने पड़े लंका में, इसकी कहानी उन्होंने कभी किसी से चर्चा नहीं की, कभी किसी से जिक्र नहीं किया।
अपनी गाथा गाने में वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने कभी किसी से इस बात का ज़िक्र नहीं किया, किसी अयोध्यावासी से इसका ज़िक्र नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति श्री राम से भी इसका ज़िक्र नहीं किया। और अयोध्यावासी से इसलिए ज़िक्र नहीं किया क्योंकि अयोध्यावासी अपने राजा श्री राम की यश और पराक्रम की गाथा सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। माता सीता के पराक्रम, उनके त्याग की कहानी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए माता सीता ने किन्हीं को अपनी कहानी नहीं बताई। इसीलिए माता सीता की कहानी गुप्त रह गई, जो हम तक आई ही नहीं। उन्होंने सिर्फ हनुमान को यह कहानी बताई और हनुमान को तब बताई जब हनुमान लंका गए थे उनसे मिलने के लिए, और बाद में भी बताई क्योंकि हनुमान स्वयं महादेव थे और माता सीता उन्हें पुत्रवत प्यार करती थी। और हनुमान ने यह कहानी सोमा को बताई और सोमा के द्वारा यह कहानी अनुसुईया तक आती है और अनुसुईया के बाद यह कहानी हम तक आ रही है। अब अनुसुईया के पास यह कहानी आती है तो अनुसुईया के मन में, जैसा कि आप जानते हैं, अनुसुईया अपनी माँ के साथ गई है जंगल में सोमा के पास। वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी माँ उसे ले जाती हैं सोमा से मिलने के लिए। जब उसे पता चलता है कि माता सीता की एक दासी है, जिससे उसको जो माता सीता के साथ रही हैं, उसी आश्रम में जब माता सीता रहती थी जहाँ, तो उससे उम्मीद है कि शायद कोई सॉल्यूशन को वो बता पाएँगी। यहाँ आने के बाद जब सोमा कहानी बताती है माता सीता की, तब अनुसुईया अपनी माँ से यह प्रश्न करती है कि उम, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आने का कारण मेरी शादी नहीं है, शादी करना नहीं है, मेरे यहाँ आने का कारण कुछ बहुत बड़ा है। तब माता उससे कहती है कि तुम्हारा जो उसकी अनुसुईया की माँ उससे कहती है, माता सीता के साथ जो तुम्हारा संबंध टूट गया था, जो विस्थापित हो गया था, उस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और अनुसुईया के बारे में आप जानते हैं कि जब भी माता सीता के अपहरण की कहानी उसे बताई जाती थी, वो बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो जाती थी और वो कहती थी कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता है। हमारी माता सीता इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती हैं। पूरी अयोध्या को भी कुछ नहीं पता था कि लंका में उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ था। तो उसका यह सवाल भी उसको यहाँ तक लाता है और उसका वह सवाल यहाँ तक लाता है और उसके पिछले जन्म के जो कुछ दोस्त थे, वह यहाँ तक लेकर आता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह कहानी उसके माध्यम से हम तक पहुँच रही है। अब ये आपका कॉल है, ये खोजना कि यह कहानी आप तक क्यों आई है। मैं अपनी बात करती हूँ कि यह कहानी मुझ तक क्यों आई है, कैसे आई है। क्योंकि मैं बचपन से जब माता सीता की कहानी सुना करती थी, मैंने एक फ़िल्म भी देखा था। तो माता सीता को जिस तरह से कहानी में बताया जाता है कि उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, धोबी के कहने से उनको घर से बेघर किया गया, वनवास भेजा गया और किस तरह से जंगल में कितने कष्ट उठाकर उन्होंने अपने दोनों बेटे को पाला और उनके बेटे को भगवान राम स्वीकार नहीं करते हैं, माता वचन। फिर माता सीता धरती में समा जाती हैं, खुद को खत्म कर लेती हैं। ये सारी कहानी सुनकर मैं बहुत विचलित हुआ करती थी और मुझे लगता था कि ये कैसा, जिसे हम भगवान राम कहते हैं, अपनी पत्नी के साथ उसने क्या किया और क्यों किया? किसी के कहने पर, धोबी के कहने पर पत्नी को घर से निकाल देंगे? ये कैसा भगवान है? तो किसी ने हमें कहा कि राजा का धर्म बड़ा होता है, उन्होंने राजधर्म निभाने के लिए ऐसा किया। प्रजा को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मुझे ये आंसर कन्विंसिंग नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। क्यों उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? मुझे लोगों के द्वारा बताए गए आंसर कभी भी कन्विंसिंग नहीं लगे और सच पूछो तो मैं भगवान को, राम को कभी भगवान ही नहीं मान पाई और मेरे अंदर ये खोज एक बनी रही, ऐसा क्यों? या फिर क्या कोई और वजह थी? क्या कोई और
कुछ और है कहानी में जो हमें नहीं पता है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी हुई तो मैंने उसका नाम सिया रखना चाहा, तो कुछ लोगों ने मना किया कि नहीं सिया मत रखो। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सिया सिया मीन्स सीता, सीता का दूसरा नाम सिया है। सीता को बहुत कष्ट झेलने पड़े, बहुत कष्ट उठाने पड़े, इसलिए लोग बेटी का नाम सीता नहीं रखते हैं। हम बोले अरे! ऐसा कैसे? लोग मेरे पास भी कोई आंसर नहीं था परफेक्ट, इसलिए मैं इंसिस्ट नहीं कर पाई और मैंने अपनी बेटी का वो नाम नहीं रखा। क्योंकि उस समय बड़े-बुजुर्ग जो भी कह रहे हैं तो उनकी बात काट कर नाम रखना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अंदर ये खोज चल रही थी कि ऐसा क्यों है? और जिसे आप कष्ट कह रहे हो, क्या एक्चुअल में वो कष्ट है? उसको आप कष्ट भी वो मानती थी कि नहीं मानती थी? और कष्ट का क्या मतलब है? जैसा कि इस कहानी में बार-बार आया है कि जो सुख है, उसे जो दुःख है, उसको सुख में बदलना हमारे हाथ में है, उससे सीखना, सबक सीखना हमारे हाथ में है। अभिशाप को आशीर्वाद में बदलना हमारे हाथ में है। लेकिन आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अभिशाप को आशीर्वाद में बदल सकें। तो लोग बहुत ऊपरी स्टोरी जानते थे, जानते हैं, अभी भी बहुतों के तक यह स्टोरी नहीं पहुँची है। तो ये स्टोरी मुझ तक मुझे लगा कि शायद इसीलिए मुझ तक ये स्टोरी आई है। आप तक क्यों आई है? अगर आप लोग इस सेशन के बाद ये साझा करें मेरे से, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग अब एक और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, एक और वजह है इस कहानी को अभी आने की वजह जो है वो ये है कि दुनिया में स्त्रीण शक्ति की बहुत कमी हो रही है। स्त्रीण शक्ति का मतलब होता है दया, करुणा, हुँ, प्रेम, इन भावों की कमी हो रही है। इसकी वजह से भी यह बुक हमारे तक आई है कि अभी ज़रूरत है। और ये जो अनुसुईया जाती है पूछने के लिए, सोमा से बात करने के लिए जाती है, यह कहानी उस तक पहुँचाई जाती है ताकि ये कहानी भविष्य में हम तक, आप तक, लोगों तक पहुँचाई जा सके और इस कहानी में जो छुपे जो मैसेज हैं वह लोगों तक जा सके। कितनी बड़ी प्लानिंग थी, है ना? और हमें बहुत खुशी है कि हम इतनी बड़ी प्लानिंग का एक छोटा-सा हिस्सा, एक छोटा-सा भाग बन पाए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि स्त्रीण शक्ति की बहुत कमी हो गई है। तो जब बहुत ज़्यादा अंधकार में, बहुत ज़्यादा कलयुग जब था, तो लोग यह बात समझने को तैयार नहीं थे, तब यह बुक हम तक नहीं आ पाई थी। लेकिन अब लोग धीरे-धीरे समझने की स्थिति में हैं। पीएसएसएम मास्टर जैसा कि आप जानते हैं, पतरी जी ने हम सबको खड़ा किया है। तब धीरे-धीरे वो वातावरण बन रहा है, धरती की एनर्जी हाई हो रही है, धरती शिफ्ट हो रही है द्वापर की तरफ। तो इसलिए हमारे पास अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है मास्टर्स का कि जिन्होंने इस बुक को हमारे लिए अवेलेबल कराया है। और पत्री जी का सबसे बड़ा धन्यवाद है, डैना मरियम जी का। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो माता सीता चंद्रिका से मिलती हैं जंगल में और चंद्रिका अपनी कहानी उन्हें बताती है जो बहुत विलाप करती है, बहुत सदमे में है, दुःख में है क्योंकि उनका पति छोड़कर चला गया है और वो जो गुरुकुल चला रहे थे पति-पत्नी दोनों मिलकर, और गुरुकुल के सारे शिष्य चले गए हैं, उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। और वह रा चंद्रिका बहुत परेशान है, माता सीता उसे सांत्वना देती हैं, उसे भोजन बनाकर खिलाती हैं। माता सीता का प्यार दिखाने का यह तरीका है, हीलिंग देने का यह तरीका है कि वह भोजन बनाकर लोगों को खिलाती हैं, उनको हील करती हैं। और उसके बाद जब वो वापस आती हैं तो वो सारी कहानी बताती हैं। ला राम को बताती हैं, लक्ष्मण को बताती हैं और राम भगवान भी उस दिन लेट से आते हैं घर और वो बताते हैं कि उनको नदी किनारे
सब मिल गया था, तो माता तुरंत ही समझ जाती हैं कि वह सब ज़रूर चंद्रिका के पति का ही होगा। जिसको शूर्पणखा ने भेष बदलकर एक सुंदर युवती के भेष में वह आती है और लोगों को पहला-फुसला कर ले जाती है। ऋषि-मुनियों को, साधु-संतों को, उनके शिष्यों को बरगलाती है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और अब जो है सो शाम का वक़्त है और लक्ष्मण और राम दोनों भाई आपस में बातें कर रहे हैं और लक्ष्मण कहते हैं, अपने भैया से, भ्राता से कहते हैं कि भैया कि आपको क्या एक अजीब सुगंध सी नहीं आ रही है, खुशबू नहीं आ रही है? तो श्री राम बोलते नहीं मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही है। तो तभी जैसे ही वो दोनों भाई बात कर रहे हैं, तभी कुटिया के प्रांगण में एक सुंदर युवती प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक बर्तन है, एक कटोरा है जिसमें खाना भरा हुआ है। तो वह आती है और अपना परिचय एक ऋषि की बेटी के रूप में देती है और कहती है मैं ऋषि की बेटी हूँ, मेरा नाम माया है। आप देख रहे हैं माया नाम, माया कितना मेटाफोरिकल नाम है ना? मेटाफोरिकल का मतलब होता है कि जैसा नाम वैसा काम। कितना जस्टिफाइड नाम उसने रखा है अपना। कहती है मेरा नाम माया है जो कि दूसरों को भ्रमित करती है और कहती है क्या मैं शाम का खाना आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, खा सकती हूँ? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, अगर उसकी इजाज़त हो, तो हम लोग ज़रूर साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं। तो ऐसा कहते हुए वो खाना का जो कटोरा है, बर्तन लक्ष्मण की तरफ बढ़ाती है और जैसे ही वो लक्ष्मण की तरफ बढ़ाती है, माता सीता देख लेती हैं शूर्पणखा को और देखते ही वह पहचान जाती है जिस खुशबू की उसने चर्चा सुनी थी चंद्रिका से और हर किसी से जो उनके मन में एक दहशत के रूप में समा चुका था, वह देखते ही पहचान जाती है कि यही शूर्पणखा है। वह तेज़ी से आती है और वह कटोरा लक्ष्मण के बजाय हाथ में लेने के बजाय खुद ले लेती है और उस कटोरे को लेकर वह अंदर जाती है तो शूर्पणखा कहती है कि अच्छा आपके साथ एक दासी भी है, नौकरानी भी है? मुझे किसी ने बताया नहीं। मुझे तो सिर्फ़ यही जानकारी मिली कि आपके यहाँ कोई 2 सन्यासी आए हैं, तो मुझे लगा खाने की दिक्कत होगी उनको, तो मैं जाकर उनको खाना खिलाती हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपके साथ एक सेविका भी है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, "यह सेविका नहीं, मेरी पत्नी है।" तो कहती है, "अच्छा, अच्छा।" तो फिर माता सीता उस खाने को लेकर कुछ कहना है क्या? हेलो? हैंड हैंड है किन्हीं का, कुछ कहना है क्या? या गलती से हुआ है? हम लोग बाद में बात कर लेते हैं, सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है? ठीक है सर, एसपी सर? जी मैम। बाद में जी, बाद में बात कर जी लेते हैं अगर कुछ बात 2 हुई तो। बजे हम थोड़ा देर के बाद में करते हैं, एक बार सेशन खत्म हो हाँ, जाए हाँ, रहेगा मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका अगर बिल्कुल गलती से टाइम आपका हैंड अगर गलती से रेज है तो आप मैसेज में डाल दीजिए, या कुछ अर्जेंट बात करना है तो आप मैसेज में डाल सकती हैं ताकि हम आप जी, कर सकें। ठीक है। तो माता मैंने सीता उस खाने को जानबूझ ले डाला है। जी मैम बोलिए। कुछ नहीं, मैं ये किस बुक से आपने लिया, ये जो चरित्र आप सीता जी का बता रही, किस रामायण से लिया? बाद में बात कर लेंगे मैम। बात हाँ कर ठीक। चलिए ओके। बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं, तो वो समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुँ, हुँ। माता सीता उस खाने को लेकर अंदर जाती हैं और वो समझ नहीं पा रही हैं कि अब खाने का क्या करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ?
और कैसे इससे बचना है, खुद को बचाना है, राम और लक्ष्मण को कैसे बचाना है। क्योंकि जो कहानी वो चंद्रिका से सुन चुकी थी, तो वो प्लानिंग कर रही थी और थोड़ी डरी हुई भी थी कि कैसे सब चीज़ मैनेज करना है इतनी जल्दी। तो उन्हें जो उस वक़्त समझ में आया, उन्होंने उस खाने को जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दिया और उनका खाना चूँकि शाम का तैयार था, तो उसको बर्तन को अच्छे से धोया और अपना खाना उसमें डाल दिया। चूँकि लाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस वक़्त लोग आग जलाकर खाना वग़ैरह खाते थे, तो बस एक अग्नि जली हुई थी, अंगीठी टाइप की, तो वो खाना लेकर आती हैं उसमें, तो राम और लक्ष्मण या फिर शूर्पणखा को पता नहीं चलता कि खाना बदल दिया गया है। तो खाना लेकर आती हैं और परोसती हैं और सभी अच्छे से खाते हैं और शूर्पणखा इंतज़ार कर रही है कि अब कुछ होगा, शायद अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। 2-2 3-3 दफ़ा दोनों भाई खाना माँग कर खाते हैं। शूर्पणखा एक बार राम के पास जाती है बैठने के लिए, उनसे प्यारी-प्यारी बातें करने की कोशिश करती है, तो माता सॉरी श्री राम जो हैं वो माता सीता के बगल में जाकर बैठ जाते हैं, तो फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है बैठने के लिए। तो लक्ष्मण वो बहुत प्यारी-प्यारी चुलबुली सी बातें करती है, तो लक्ष्मण उसकी बातों में आ जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो कौन है। हालाँकि राम समझ चुके हैं कि वो कौन है। तो वो लक्ष्मण के और भी करीब आना चाहती है और इस तरह से दोनों बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो इंतज़ार कर रही है कि अब खाना खत्म हुआ, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, जब कुछ भी नहीं होता है तो वो कहती है कि उसको एक गुस्सा आ जाता है और कहती है कि इस नौकरानी ने मेरा खाना बदल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना बदलने की, या कोई तरीका है कि खाना बदल दिया जाता। ऐसा कहते ही उसने आव देखा न था और माता के गर्दन पकड़ लिए और जैसे ही माता के गर्दन पकड़ लिए तो अम, श्री राम और लक्ष्मण को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और चूँकि माता को बचाना बहुत ज़रूरी था, तो लक्ष्मण ने और भी जल्दीबाजी में बिना सोचे-समझे उस पर तलवार से वार कर दिया शूर्पणखा से, जिससे वो लहूलुहान हो गई और उसके नाक कट गए और वह जैसे ही नाक कटे, वह रोती हुई, चिल्लाती हुई वहाँ से भागी और बोली कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। अभी तीनों भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उनको समझ में ही नहीं आया था कि अचानक से क्या हुआ और ये क्या घटना हो गई। माता कहती हैं कि इस तरह से निहत्थी स्त्री पर वार करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया? तो श्री राम कहते हैं कि लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था, जिस तरह से उसने तुम्हारा गला पकड़ा तो वो क्या ही कर सकता था? तुम्हें बचाने के लिए उसे जो ठीक लगा उसने वही किया। हम जानते हैं कि स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए हमें, वो भी निहत्थी स्त्री पे और पहले भी आप जैसा कि जानते हैं कि भगवान श्री राम ने राक्षसी को मारा था जंगल में, जिसके लिए माता सीता नाराज़ हो गई थी। तो शायद त्रिजटा नाम था उसका। उसको मारा था तो माता नाराज़ हो गई थी कि भ उसने नारी की हत्या कैसे कर सकते हैं वो। तो माता वसुंधरा ने उनको मैसेज दिया था कि नारी भी कभी-कभी माया के रूप में आते हैं और ऋषि-मुनियों को परेशान करते हैं, उनके ब्रह्मचर्य को भंग करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसलिए उनको मारना ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन था। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं जो भी हो, अ, हमने निहत्थी स्त्री पर हाथ उठाया है, तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो माता कहती है लेकिन उसने उसने गलत किया, उसने वार किया मेरे ऊपर तो लक्ष्मण ने तो सिर्फ़ मुझे बचाने के लिए उस पर वार किया ना। भगवान कहते हैं वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर लक्ष्मण ने वार किया है तो फल का प्रतिफल तो मिलेगा ही। मतलब उसका कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा।
जैसे कि चंद्रिका के पति ने अपनी पत्नी को धोखा देकर वह शूर्पणखा के साथ गए, तो चंद्रिका को पति को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ये प्रतिफल मिला उसे। अब शूर्पणखा को ये प्रतिफल मिला है क्योंकि उसने जो किया सीता के साथ, तो उसके नाक कटे। उसको प्रतिफल मिला, उसको कर्म का फल मिला। अब लक्ष्मण ने जो किया है, उसका भी प्रतिफल उसको भुगतना ही पड़ेगा। कहानी में हम आगे देखेंगे कि ये प्रतिफल बहुत महँगा पड़ता है। इसी प्रतिफल की वजह से लक्ष्मण जो हैं, उनको समय से पहले उनकी मृत्यु होने को होती है और माता सीता जो है अपने हिस्से का जीवन देती है लक्ष्मण को और उसी वजह से माता सीता की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, बंधी हुई हैं कि फल का प्रतिफल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी हो। भगवान हो, इंसान हो, कोई भी हो, भगवान आपको फल का प्रतिफल भुगतना ही पड़ेगा। तो ख़ैर कहते हैं चलो जाने दो, जब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। अभी तो जो ठीक लगा लक्ष्मण ने किया। तो लक्ष्मण इस तरह से तीनों बहुत परेशान होते हैं और आपस में बातें करते हैं और श्री राम कहते हैं कि ये इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। रावण यह सब देखकर चुप बैठने वालों में से नहीं है और हमें लगता है कि अब हमें तैयार होना होगा। एक बड़ी लड़ाई के लिए, एक बड़े युद्ध के लिए हमें तैयार होना होगा। हम सबको खुद को तैयार करना होगा उसके लिए। तो इस तरह से ये सारी बातें होती है और फिर तीनों सोने को जाते हैं। फिर अगली सुबह माता जब सोकर उठती हैं और खिड़की से बाहर देखती हैं सूर्य की किरणों को, तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी गोदावरी उनको बुला रही है। तो वो जाती हैं, गोदावरी के पास जाती हैं, गोदावरी नदी के पास जाती हैं, वहाँ बैठती हैं। गोदावरी नदी नदी की देवी खुद नदी से निकलकर बाहर आती हैं और उनके पास बैठती हैं और कहती हैं कि माता अब आपको रावण से युद्ध के लिए तैयार होना है। तो वो कहती हैं कि मैं तैयार हूँ। तो कहती है आपको अपनी सहमति देनी होगी, तभी रावण आपके सामने आएगा, अन्यथा वो आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो माता कहती है मेरी सहमति है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। मेरी जो आत्म शक्ति है, मेरी साधना, मेरे मंत्र, मेरी अध्यात्म शक्ति जितनी है, मैं सबके साथ उसके सामने आने को तैयार हूँ। तो गोदावरी कहती है माता ऐसे नहीं, वहाँ आपके और उसके सामने कोई डिबेट नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको उसके असुरी साम्राज्य में प्रवेश करना होगा, आपको उसके मन में प्रवेश करना होगा। लंका में जाकर प्रवेश करके आपको उसके अंदर सोई हुई जो प्रेम की शक्ति है, जो ताकत है, उसकी आत्मा जो अंधकार में भटक रही है, उसको जगाना है। उसके अंदर सोए हुए प्रेम को जगाना है माता। और उसकी मायावी शक्ति को खत्म तभी किया जा सकता है जब आप उसके असुरी साम्राज्य में प्रवेश करेंगी। तो माता कहती हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं सहमत हूँ। मेरी सहमति है। तो नदी गोदावरी कहती हैं कि ठीक है माता, फिर आप अपना ध्यान रखें और देखें आगे क्या घटनाएँ कैसे मोड़ लेती हैं। तो उसी वक़्त भगवान श्री राम भी उनको खोजते हुए आ जाते हैं क्योंकि वो देख रहे थे कि माता बहुत आजकल बहुत दुखी रहती हैं, बहुत उदास-सी रहती हैं, असमंजस में रहती हैं, थोड़ी डरी भी रहती हैं। तो वो चाहते थे माता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताना और उनको ढाँढस बँधाना। तो भगवान श्री राम भी खोजते हुए उनको आते हैं
और कहते हैं कि सीते आपको इस तरह से अकेले जब आप देख रहे हो कि माहौल ठीक नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, रावण और के लोग उसकी मायावी शक्ति इधर-उधर सब घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, शिकार की तलाश में, तो आपको इस तरह से घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। तो सीता कहती हैं कि उम, हो सकता है कि अब हमें उम, बिछड़ना पड़े एक-दूसरे से, क्योंकि वो सारी बातें बताती हैं, नदी गोदावरी के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, सारी बातें वो उसे बताते हैं कि अब हमें किस तरह से उससे लड़ना होगा, किस तरह से हमें आसुरी साम्राज्य में जाकर उसको ख़त्म करना है, उसकी मायावी शक्ति को, और उसके मन में जाकर किस तरह से प्रवेश पाकर उसके सोए हुए प्रेम को जगाना है। तो श्री राम कहते हैं कि उम, और माता आशंका व्यक्त करती हैं कि हो सकता है इससे हमें और आपको अलग होना पड़ जाए। तो श्री राम कहते हैं कि माता गोदावरी से जल लेकर दोनों अपने अंजुल में जल लेकर प्रण करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम एक-दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी बिछड़ेंगे नहीं और एक-दूसरे का संबल बन के रहेंगे। हुँ, और श्री राम कहते हैं कि आप धैर्य की मूर्ति हो, आप प्रेम हो और आप ही के प्रेम से मैं जीवित हूँ। आप ही के प्रेम से यह दुनिया चल रही है। ये बात आप हमेशा याद रखना, कभी भी मत भूलना आप। इस तरह से दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो माता को बहुत अच्छा लगता है, जो थोड़ी-सी उदास थी, थोड़ा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे जीवन में 2 उनके पिता और पति इतने अच्छे 2 पुरुष मिले हैं उनको। फिर उनको याद आता है कि किस तरह से एक बार रावण गया था जनकपुरी महादेव का धनुष माँगने के लिए, जब माता सीता बहुत छोटी थी, बच्ची थी, और कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं उतनी छोटी थी, फिर भी मेरे पिता जनक ने पता नहीं क्यों मुझे हमेशा साथ में रखा। जब वो रावण उनसे महादेव का धनुष माँगने गया था, तो माता सीता को राजा जनक ने साथ में रखा। उम वो लगता है इसके पीछे बहुत गहरा मैसेज है, और मुझे कुछ मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह से, और वो कहते हैं कि जब वो माँगने के लिए गया था, धनुष माँगने के लिए गया था, तो बातचीत पहले बहुत ही औपचारिक थी, बहुत शांत बातचीत थी। लेकिन जब उनके पिता ने धनुष देने से मना कर दिया, महाराज जनक ने, तो रावण बहुत गुस्से में आ गया, बहुत आवेशित हो गया। लेकिन उनके पिता बिना डरे, बिना झुके उम, अम अडिग रहे अपनी बातों पर, और उन्होंने कहा कि वक़्त आने पर तुमको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो माता सीता ये सारी बातें याद करती हैं, और वो इस बात का ये मतलब समझ पाती हैं कि शायद इसीलिए उनके पिताजी ने उनको अपने साथ रखा था, क्योंकि उस रावण से उनके पिता भी चूँकि दूर अंतर्यामी थे, भविष्यवेता थे, वो भी भविष्य की चीज़ें देख पाते थे। वो भी ज्ञानी थे, सन्यासी थे, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो देख पा रहे थे कि आगे भविष्य में सीता को इसका सामना करना है, और सीता ही इसका अंत करेगी। इस वजह से उन्होंने छोटी बच्ची सीता को अपने साथ रखा, और वह उसे दिखाना चाहते थे कि रावण चाहे कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन उससे डरना नहीं है। तो यह एक बहुत गहरा मैसेज राजा जनक ने, माता सीता जब बच्ची थी तो उसके मन में यह एक बीज डाला कि सामने वाला चाहे कितना भी पराक्रमी हो, अगर वो गलत है तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप जैसा कि जानते हैं, राजा जनक एक बहुत महान पिता थे। उन्होंने माता सीता की परवरिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। तो जैसे ही माता सीता को यह याद आया, वो कहती हैं कि हाँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। जब मेरे पिता कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे उसका सामना करना होगा।
तो भगवान राम कहते हैं कि इस घटना को बहुत साल हो चुके हैं सीता, और रावण अब और बलशाली हो चुका है, अब और ज़्यादा मायावी हो चुका है, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ा लिया है। इसीलिए अब हमें और ज़्यादा सतर्क रहना है, और उसके साथ जो हमारा युद्ध होगा, उसका जो सामना तुम्हें करना है, हमें करना है, वो अब इतना सहज नहीं होगा, हमें उसके लिए भी तैयार होना होगा। तो इस तरह से दोनों की बातचीत होती है, और वो दोनों आते हैं, वापस आश्रम में आते हैं। फिर अ, अगली सुबह मौसम अचानक से बदल जाते हैं, काले-काले बादल छा जाते हैं, तेज आंधी बहने लगती है, जबकि यह बरसात का मौसम नहीं था। अ, हवाओं का रुख बदल जाता है, पक्षी बहुत असमंजस में हैं, किधर जाएँ? और बहुत अजीब-सी स्थिति हो जाती है, और लगता है जैसे कि हर जगह नकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान हो गई हैं। विद्यमान तो पहले से ही थी, और भी जागृत हो चुकी हैं। उम, और माता सीता समझ रही थी कि ये सारे संकेत हैं रावण के आने का, इसलिए वो उन्होंने सहमति तो दे दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रावण एक्चुअली में कैसा है, उसकी कितनी शक्तियाँ कैसी शक्तियाँ हैं, और वो किस तरह से उसका सामना करेंगी। ये सारी बातें उनको नहीं पता थी, इसलिए थोड़ी-सी वो असमंजस की स्थिति में माता थी। तो उम, अचानक से देखते हैं, भगवान श्री राम देखते हैं कि एक हिरन जा रहा है, तो कहते हैं कि देखो सीता, एक स्वर्ण हिरन जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मिथिला में हुआ करता था। अभी तो इधर देखने को भी नहीं मिला है। मैं तुमको उसके लिए लेकर आता हूँ। माता सीता नहीं बोलती हैं कि मुझे वो चाहिए, वो खुद उसको कहते हैं कि मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि वो देख रहे थे कि माता बहुत अस्थिर है, तो वो किसी तरह से उनको कम्फर्ट देना चाह रहे थे उनको, ताकि उनको अच्छा फ़ील हो। तो वो बोलते हैं मैं उसे लेकर आता हूँ। तो माता सीता उनको रोकना चाहती हैं, और कहना चाहती हैं कि मत जाइए, वो कोई मायावी जानवर हो सकता है। लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती है। और जब वो भगवान श्री राम जाते हैं, तो वो उनके पीछे जाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके पैर उठ ही नहीं रहे हैं। चूँकि माता ने घटनाओं को होने की सहमति दे दी थी, इसलिए वो अब उन पे उनका कोई वश नहीं रहा कि अब उनको वो रोकना भी चाहे तो रोक सके। तो इसलिए ऐसा हुआ कि वो बोल ही नहीं पाती हैं, चले ही नहीं पाती हैं जाकर, और भगवान श्री राम चले जाते हैं मृग के पीछे। अ, उसके बाद माता बहुत घबराई हुई हैं, तो लक्ष्मण पूछते हैं कि क्या हुआ भाभी? तो बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया चले गए हैं स्वर्ण हिरण को लाने के लिए, हो सकता है कि वो कोई मायावी हो। तब तक माता की आवाज़ फिर से वापस आ जाती है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएँगे थोड़ी देर में। लेकिन जब जब थोड़ी देर बीत जाती है और लक्ष्मण नहीं आते हैं, सॉरी, भगवान श्री राम नहीं आते हैं, तो लक्ष्मण भी उनके पीछे चले जाते हैं। माता फिर से उनको रोकना चाह सॉरी, भगवान श्री राम की एक दर्द भरी आवाज़ आती है, तो फिर लक्ष्मण को जाना पड़ता है कि देखने के लिए कि भैया को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तो वो जाते हैं। माता उनको रोकना चाहती है कि हो सकता है कोई मायावी ताकत हो जो इस तरह की आवाज़ निकाल रही हो, फिर भी वो जा लक्ष्मण जा चुके होते हैं, माता रोकना चाहती है, फिर से उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। वो उनके पीछे जाना चाहती है, फिर से वो नहीं जा पाती हैं। और इस तरह से तभी उम उनकी कुटिया के परिसर में, प्रांगण में एक साधु वेश में एक साधु वेश में कोई आता है, जिसको माता आते ही पहचान लेती हैं कि यही रावण है। वह साधु वेश में है, लेकिन वह रावण था, और माता आते ही पहचान लेती हैं। और जो कहानी में लक्ष्मण रेखा की जो बात थी, ऐसा इसमें नहीं है कुछ भी। कि लक्ष्मण रेखा डालकर जाते हैं कि इससे उधर मत जाइएगा।
ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो वो जानती हैं कि रावण है, लेकिन कोई दरवाजे पर आया है और उसको बिना भिक्षा दिए लौटा देना, ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था माता के लिए। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तो जानते हुए कि रावण है, वह अ, पात्र में, बर्तन में, कटोरे में फल रखकर उसको देने के लिए जाती हैं। और उन्हें पता है कि जब वो कदम बढ़ा रही हैं, तो उनको पता है कि वो गहरे अंधकार की तरफ बढ़ रही हैं, जहाँ आगे क्या होने वाला है, कुछ भी उनको पता नहीं है। थोड़ी डरी हैं, थोड़ी सहमी हैं, थोड़ी असमंजस में हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें यह करना ही होगा, तो इसलिए वह कदम आगे बढ़ाती हैं। और जैसे ही वो कदम कदम आगे बढ़ाती हैं, अम, रावण उनकी कलाई पकड़ता है, और जैसे ही रावण उनकी कलाई पकड़ता है, भगवान श्री राम से उनका संपर्क टूट जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता एक स्वर्ण डोर से बंधे हुए थे, या आप कह सकते हैं कि जब हम ध्यानी हैं तो हम जानते हैं कि जो ध्यानी होते हैं, जो हायर मास्टर्स होते हैं, उनको एक-दूसरे से बात करने के लिए फिज़िकली प्रेज़ेंट होना ज़रूरी नहीं होता है। वो कम्युनिकेशन मैसेज ध्यान के ज़रिए या बिना ध्यान के भी वो आपस में बातें करते रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शोमा को भी कटोरे के ज़रिए सारे दृश्य वग़ैरह दिखते थे। तो उनको जैसे वो मत इससे पहले क्या होता था कि जब भी वो श्री राम के बारे में सोचती थी, तो उनके मानस पटल पर उनका चित्र दिख जाता था और वो उनसे बिल्कुल बात कर सकती थी, जैसे वो आमने-सामने हो। जैसा कि आप एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी इस तरह की बातें आई हैं। तो लेकिन जैसे ही रावण ने उनकी कलाई को पकड़ा, भगवान श्री राम से उनका कनेक्शन खत्म हो गया, संपर्क खत्म हो गया, टूट गया। और माता को यह बिल्कुल भी नहीं भान था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए वो बहुत परेशान हो गई। जैसे ही भगवान राम से उनका संपर्क टूटा, वो बहुत परेशान हो गई। अब उन्हें लगने लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण परेशान हो जाएँगे कि उनके साथ क्या हुआ? कहाँ ले जाया गया? तो यह सोचकर वो बहुत परेशान हो गई। अ, और रावण उनको विमान में बिठाकर ले जाता है। तो रावण ने जब उनकी कलाई पकड़ी, तो एक बहुत अद्भुत, एक बहुत अलग चीज़ हुई जो पहले आज तक कभी नहीं हुई थी, किसी ने भी नहीं देखा था। माता सीता का क्रोध। आज से पहले माता सीता ने कभी किसी पे कभी क्रोध नहीं किया था, कोई क्रोध नहीं किया था। पहली बार माता सीता क्रोध की अग्नि में जल रही थी, और उन्होंने रावण से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कलाई पकड़ने की? हुँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरा अपहरण किया है? अगर मैं नहीं चाहती तो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ तुम मुझे छू भी नहीं सकते थे। अपहरण करना तो बहुत दूर की बात है, तुम मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकते थे। और जैसे ही रावण ने उनकी बातें सुनी, वो समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, और उन्होंने माता की कलाई को छोड़ दिया। और माता को वो जंजीर में बाँध कर ले जाना चाहता था, ताकि लंका में लोग उसकी वाहवाही करें, लेकिन वह समझ गया कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो अनुसुईया की जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है कि पहले भी मैंने बताया कि माता की सहमति थी सारी घटनाओं को लेकर। तो इस वज़ह से माता जाती हैं, पर्पस क्या है जाने का, सारे क्वेश्चन का आंसर अनुसुईया को यहाँ से मिलता है। तो वो लेकर जाता है माता को। रास्ते में जटायु ने माता को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने बहुत पराक्रम के साथ रावण का सामना किया। और रावण ने उसे लहूलुहान कर दिया, और बेचारा कटे पंख के साथ ज़मीन पर जा गिरा। और लेकिन वह एक बहुत बड़ा सबूत था भगवान श्री राम के लिए, कि माता सीता को किधर की ओर ले जाया गया, किस दिशा की ओर ले जाया गया है। तो इस तरह से उसको रावण ले जाता है माता सीता को हरण करके, और जब वो लंका पहुँचता है रावण,
वे लोग पहुँचते हैं तो माता सीता को बहुत आश्चर्य होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। रावण का स्वागत करने के लिए भी पूरी भीड़ इकट्ठी थी। उम, और सब रावण की वाहवाही कर रहे थे, उसका जयकारा लगा रहे थे। दास-दासियाँ, लोग, लंका के लोग और शूर्पणखा सबसे आगे खड़ी थी और उसने कहा कि देखा तुमने अम, मेरा प्रतिशोध। और ऐसा कह के उसने माता सीता के मुँह पे थूक दिया और उनको अपमानित करने के लिए माता सीता एक बड़े से गेट के अंदर प्रवेश करती हैं, प्रांगण में एक आंगन में प्रवेश करती हैं और वहाँ से एक रास्ता बगीचे की तरफ जाता है। माता चाहती थी कि उनको किसी भवन में बंद करके ना रखा जाए। वो प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहती थी, जैसा कि आप जानते हैं, वो प्रकृति की बेटी है, तो वो जाती हैं बगीचे की तरफ। वहाँ एक अशोक का पेड़ था कोने में और उनको लगा कि वह अशोक का पेड़ माता सीता को बुला रहा है और वह अशोक के पेड़ के नीचे जाती है। तो इस तरह से पहला एपिसोड जो हमारा था माता सीता की लंका यात्रा, ये खत्म होता है। और यहाँ एक और कितना वक़्त है हमारे पास? उम, मैम 15 मिनट है अभी। जी, ठीक है। मैं 15 मिनट में एक और चैप्टर है उसको कर लेती हूँ, ठीक है? तो एक जस्ट मिनट मैं थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ। अगला चैप्टर है सीता का त्याग। तो माता सीता ने जो त्याग किए मानवता की रक्षा के लिए, उस त्याग का वर्णन है कि उनको क्या-क्या दुःख और परेशानी उठाना पड़ा लंका में मानवता की भलाई के लिए, उसका वर्णन है। तो हाँ, जब उनको रखा गया अशोक वाटिका में जब वो रुकती हैं तो फिर वहाँ बहुत सारी राक्षसी सेविकाओं के रूप में उनके आस-पास रहती हैं, जिसके बहुत ही कुरूप भद्दा जिनका स्वरूप है। उसमें से एक दासी जिसकी आँखों में थोड़ी-सी दया और करुणा है माता सीता के लिए, वह माता को खाने के लिए पूछती है कि कहती है कि माता कुछ खा लीजिए आप। तो वह उन्हें खाने के लिए कुछ फल देती है और पानी देती है। माता थोड़ा-सा पानी पीती हैं अम, और फल खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, सिर्फ़ पानी पीती हैं और उसके बाद माता ध्यान में बैठ जाती हैं और माता लगातार कोशिश कर रही हैं कि भगवान राम के साथ उनका संपर्क स्थापित हो। क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पीछे कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि माता जब किशोरावस्था में थी तो किस तरह से वो उम उम, लगभग 2 दिनों तक लगातार ध्यान करती रही थीं और वो लगभग अपना शरीर त्यागने को तैयार थी, अगर भगवान श्री राम से उनका कनेक्शन स्थापित नहीं होता तो। तो भगवान श्री राम ही थे उन्होंने जिन्होंने आकर माता को शरीर त्याग करने से बचाया था। तो माता इसलिए बहुत बेचैन थी कि जल्दी से जल्दी उनका कनेक्शन भगवान श्री राम के साथ स्थापित होना चाहिए। तो वह ध्यान में बैठती हैं और भगवान श्री राम से कनेक्शन की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी कोई सुराग उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं भगवान श्री राम की मृत्यु तो नहीं हो गई, कि उनका कनेक्शन उनके साथ स्थापित नहीं हो पा रहा है। फिर कहती है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जब वो ध्यान में बैठती हैं तो वो अपने आप को पाती हैं कि वो एक
गहरे अंधेरे में जा रही हैं, जो कि एक सुरंग नुमा है, लगातार बहुत लंबा सुरंग है। उसके बाद फिर जाकर वो एक जंगल में जाकर ख़त्म होता है, जहाँ जंगल में बहुत ही भयावह दृश्य है वहाँ का। बहुत सारे पेड़-पौधे कटे पड़े हैं, जंगल में आग लगी हुई है, बहुत सारे मुर्दे, लाशें पड़ी हुई हैं, औरतों की अधजली लाशें, आधी कटी हुई लाशें जली पड़ी हैं और बहुत, बहुत ही भयानक दृश्य है। हर जगह चीख-पुकार मची हुई है और माता यह देखकर बहुत डर जाती हैं कि वो कहाँ आ गई हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि यह वास्तविकता है, भ्रम है, कोई सपना है, क्या है एक्चुअल में। उम, फिर वह माता वहाँ से निकलना चाहती हैं, लेकिन निकलने का उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। तो फिर ये सारी सारी जो अधजली, आधी कटी लाशें थी, वो सारी लाशें युवती में परिवर्तित हो जाती है और वो सारी युवती माता के पास आती है और कहती है कि माता प्लीज़ हमें बचाइए माता। तो माता एक-एक करके सबको छूती हैं, चेहरे से पूरा ऐसे छूती हैं और कहती हैं कि बेटी तुम अपना दुःख हमें दे दो। किसने तुम्हारा यह हाल किया है? कैसे तुम इस अवस्था में पहुँच गई? तो वो बताती हैं कि रावण ने उनका यह हाल किया है। रावण ने उनका अपहरण किया, उनको प्रताड़ित किया, उम, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी इज़्ज़त भंग किया। तो माता कहती हैं कि रावण उसने तुम लोगों के साथ ऐसा किया है स्त्रियों के साथ, उसको इस किए का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं अब आ गई हूँ, मैं इस सब का बदला उससे लूँगी। तो फिर ऐसा देखते-देखते वो फिर से देखती हैं कि उम, एम एक सरोवर है बहुत सुंदर जहाँ भगवान श्री राम हैं, उनके पास कोई युवती लेटी हुई है। तो वह खुश होकर जाते हैं भगवान श्री राम के पास, लेकिन जब वो युवती को देखती है माता तो ठिठक जाती है। भगवान श्री राम युवती से कह रहे हैं कि सीता की मृत्यु हो गई है, अब वही अयोध्या की रानी बनेगी। तो माता कहती है, "नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हुई है राम मैं जीवित हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?" लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो माता को अंदेशा होता है कि कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है, आई मीन सीता खुद को लगता है उनको कि उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है, कि भगवान राम उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो फिर अचानक से देखती है कि वो भगवान श्री राम जो है वो रावण के वेश में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि एक्चुअली वो रावण था, माता को कमज़ोर करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये सारी साजिशें, ये मायाजाल उसने फैला कर रखी थी। कि माया कि किसी तरह से माँ सीता टूट जाएँ और उनका जो प्रण है वो कमज़ोर पड़ जाए और वो उस पे हावी हो जाए। उसको पता है कि वो सीता को अपनाकर वो उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएँगी। तो इस तरह से फिर एक और दृश्य आता है कि रावण है, उसके पीछे बहुत सारी हर जगह रावण है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री रहती है और उस सुंदर स्त्री की रावण माता के सामने ही उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उम, गंदे सलूक करता है उसके साथ माता के सामने ही। माता उसको रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। फिर वह उम उम, ठहाके लगाकर रावण हँसता है और हर बार उसकी यही मंशा है कि माता को किसी भी तरह से बस कमज़ोर करना है। फिर से एक और दृश्य उभरता है माता के सामने, वह देखती हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या की गद्दी पर बैठे हुए हैं और वही औरत जिसको उन्होंने जंगल में देखा था, वह अयोध्या की गद्दी पर माता के सॉरी श्री राम के साथ बैठे हुए हैं और भगवान श्री राम के बगल में 2 बच्चे हैं और माता तुरंत पहचान जाती है कि ये दोनों बच्चे उनके हैं। और फिर वह देखती है कि भगवान श्री राम अपने ही बच्चे को मार रहे हैं, काट रहे हैं और तो उन वो
उनके मन में यह प्रश्न आता है कि फिर भगवान श्री राम जो है वो रावण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनके मन में यह प्रश्न आता है कि ऐसा रावण ऐसा क्यों कर रहा है? फिर हर जगह बच्चों की लाशें हैं। तो उनको यह जवाब मिलता है, इस सवाल का जवाब जब वो कहती हैं कि ऐसा रावण क्यों कर रहा है? बच्चे को क्यों मार रहा है? तो उनको अंदर से यह जवाब मिलता है कि यह रावण वही है जो पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था, जिसने अपने पुत्र को मरवाने की कई बार कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रावण का जो माया का संसार है वो माता को दिखाना चाहता था, ताकि वो परेशान हो जाएँ, टूट जाएँ, बस उसकी यही मंशा थी। और दूसरी उसकी ये मंशा थी कि जो कुछ भी वो माता को दिखा रहा था, एक्चुअली वो इस दुनिया को वैसा ही बनाना चाहता था या उसने बनाया भी था। और अगर माता बीच में नहीं आती, नहीं बचाती, रावण को नहीं लंका नहीं जाती उसको उसके अंदर प्रेम को जगाने के लिए, या रावण की हत्या नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती, भगवान श्री राम नहीं करते, तो शायद जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यह एक अलग दुनिया रही होती और वो वैसी दुनिया रही होती जैसा कि रावण ने चाहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण था उनका कार्य। तो इस तरह से माता बहुत हताश हो जाती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो अपना शरीर त्याग करना चाहती हैं, क्योंकि इतना दर्द, इतनी तड़प वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, झेल नहीं पा रही हैं और वो चाहती हैं कि वो अपना शरीर त्याग कर दें, क्योंकि भगवान राम से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा था। तभी उनको याद आता है भगवान श्री राम की वो बात याद आती है, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि सीता तुम धैर्य हो, तुम प्रेम हो, प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, तुम्हारे होने से ही मैं हूँ, तुम्हारे होने से यह सारा जगत है। तो उनको जैसे ही भगवान श्री राम की बात याद आती है, वो फिर से उनमें थोड़ा और साहस आता है और वो अपना शरीर त्यागने का जो उनका विचार था, उस विचार को वह त्याग देती हैं। तो इस तरह से यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अब हम लोग अगले चैप्टर को कल डिस्कस करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वाध्याय था। एक चीज वही है, आज के ज़माने में तो खैर शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा कि जिसको अपने फ्यूचर में पता हो कि उसको इतनी सारी दर्द मिलने वाला है और वो एक्सेप्ट करेगा। शायद ही कोई होगा, तो उसको अगर जी, फ्यूचर में पता चल जाए कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है और फिर भी वो सच्चा है, तो वो उसके प्रति वो आगे जाएगा। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, बट इसी टाइम इसीलिए अपने तरफ अपने आप में एक कथा है, कथा ही नहीं, एक बोल सकते हैं कि एक हमें मार्ग दिखा रहा है। तो शायद मेरे लिए भी बहुत कुछ है, चैलेंजेस ऐसे ही है, आते हैं जाते हैं, बट ये है कि अगर हम धैर्य बना के रखें, समझ में आता है कि चीज़ें अनुकूल नहीं भी हो रही है या प्रतिकूल है, और धैर्य बना के रखें तो डेफिनेटली रास्ता मिल जाएगा हमें। हम थोड़ा सा जल्दी पेशेंस को लूज कर देते हैं, और शायद सीता जी को जब पता था ही कि रावण इतना तकलीफ देने वाला है, फिर भी उन्होंने ये मार्ग चुना। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, सराहनीय बात है। जी, जी। थैंक यू मैम, आई थिंक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रेरणादायक था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा इससे। थैंक यू सर। तो मैम थैंक यू वेरी मच। और कोई मास्टर्स को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि माफ करना अर्पणा जी, मेरा एक मीटिंग था तो मुझे बीच में लीव करना पड़ा था। कोई बात नहीं मैम, माफ़ी की कोई बात नहीं, कोई तो बात मैं नहीं। बात कहना चाहूंगी कि पत्री जी के साथ एक सवाल किया गया था सीतायन के बारे में, इस पुस्तक के बारे में। तो पत्री जी जी, ने कहा था कि सीतायन जो है
वो एक अभी जो PSSM के लिए एक बाइबल है, जो बिल्कुल बिल्कुल सब तक पहुंचना है और युगों युगों बिल्कुल। से है, वो लोगों तक जाना है। तो ये सीतायन के माध्यम से सत्य जो है, सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप स्वाध्याय कर रहे हैं ध्यान सागर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से बहुत 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 धन्यवाद। मैंने आज आ, एक क्वेश्चन पूछा था मैम कि मैंने बोला कि इस बुक का पर्पस क्या है। मैंने ये बताया कि क्यों कैसे यह बुक हम तक आई है, और उसी से जुड़ा हुआ मैंने ये बताया कि मेरे तक यह बुक क्यों आई है। मैंने यह कहानी भी शेयर की, और मेरा यह क्वेश्चन था कि आप तक यह कहानी क्यों आई है, आप ये बताएं हमें। क्योंकि शुरू से मेरे मन में सवाल था माता सीता को लेकर। उनकी जो स्थिति जो बताई जाती थी कि उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, घर से बाहर निकालना पड़ा, एक धोबी के कहने पर उनको निकाल दिया गया। तो ये मुझे शुरू से बहुत खटकती थी ये चीज़ें, कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए ये कहानी मुझ तक आई है, कि मैं जान सकूँ सच्चाई क्या है। क्योंकि हमें जब जो बताया जाता है, अगर हम आँख मूंद कर उसको बिलीव करते हैं, तो फिर जो सच है हम उसको खोज भी नहीं पाते हैं। और अध्यात्म में मेरे आने की भी यही वजह रही है कि जो सच समाज ने मुझे शुरू से बताया, मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। तो इसीलिए मैं उसको वहाँ से निकल के यहाँ तक आ पाई हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था शुरू में कि आप तक सीतायन क्यों आया है? आप अगर कोई आदमी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ध्यान सागर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो पहले हमने महाशिवरात्रि का किया, शक्ति का किया, माँ शक्ति पे किया। फिर हमारा जो है माँ लक्ष्मी के ऊपर हमारा स्वाध्याय जो है शुरू हुआ, 1000 सीड्स ऑफ जॉय करके। और उसमें जो ज्यादा महत्व क्या दिया है, नारी शक्ति के बारे में। जो हुँ, पुरुष समाज था, पुरुष समाज की वजह से जो नारियों की जो जो भी सहना सहना पड़ा उस टाइम पे, तो अब जो समय आ गया है उस ममत्व का सबके लिए। तो जी, तब मुझे ये क्लिक हुआ कि ये भी मुझे ध्यान में ही हुआ कि सीतायन का कुछ भी नहीं था इसमें कि हमें सीता, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कुछ और कोई और सेशन करना था। पर ये सीतायन का एकदम से आ गया कि अभी हम नारी शक्ति का ही कर रहे हैं, इसी एनर्जी को बढ़ाना है, तो सीतायन क्यों नहीं। तो इस तरह से जी, सीतायन बिल्कुल। आया है। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैम एक मनोरमा मैम है, कुछ पूछ रही थी। जी जी, अनम्यूट बीच में करें। इन्होंने हैंड रेज़ किया था। जी मनोरमा जी, अनम्यूट कर लें। आपके साथ हम जुड़े रहे हैं काफी दिनों तक। मनोरमा अमन। जी, मुझे याद है जब मैंने हाँ फर्स्ट टाइम शुरू किया था ध्यान सागर, हाँ सुबह मॉर्निंग का सेशन लेती थी मैं, हाँ 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 आया करती थी मनोरमा जी। यस, याद है हाँ मनोरमा जी, याद है। हाँ। असल में अब मैं क्रिया योग में हूँ थोड़ा, तो हाँ मेरा टाइम उधर जाता है। लेकिन मैंने आपका कई लोगों से पूछा भी, लेकिन फिर मैंने उस दिन देखा था आपका कि जब हाँ आप हाँ इसमें क्रिया योग में कुंभ माता भी आ रही है ना। हाँ हाँ। सीतायन का मैंने देखा ना। आप बहुत, मैं बाद में समझा, मैं समझ गई कोई रामायण, क्योंकि रामायण बहुत सारी है ना हमारी, तो हमने समझा कि रामायण से। फिर मैंने उसका हेडिंग देखा तो सीतायन। नहीं, अच्छा चैप्टर है, अच्छे से थोड़ी कुछ चीजें अलग चेंज की गई है रामायण से, लेकिन बाकी सेम है। और ये जी। सही बात है रामेश्वरी जी, कि हमारी नारी शक्ति को ही जागना। आपने जो कहा कि हमारे पास क्यों आया, मैं भी आज क्यों शामिल हो गई, तो कहीं न कहीं कोई हमारा आप सबका लिंक है। ऊर्जा को बढ़ना था तो वो अपने उधर जाना ही जाना। तो आप डेली लेती हैं इस समय 9 बजे? जी, डेली 9 बजे सत्र रहता है, 9 से 10:30 बजे तक। अब भाई है ना, आज हमारा सत्र नहीं था, नहीं तो फिर हमारा खुद का रहता है तो क्रिया योग में तो जी हमारा कोई बात इसलिए। नहीं, आप बाद में यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, जी जी क्योंकि जी, मुझे नहीं मालूम है बहुत नौ अच्छा। बजे भी दूसरा सेशन होता है। आप हाँ यूट्यूब से सुनिए, इसके पहले जो कहानी शुरुआत से सुनिएगा। आप जी अभी जी। जैसे आपने कहा, एक सेंटेंस कहा है कि थोड़ा सा चेंज किया गया है, एक्चुअल में हाँ चेंज नहीं है। जो पहले जो रामायण हमने सबने देखा है, सुना है,
तो उसमें कुछ कहा जाए कि कुछ ऐड किया गया है, लेकिन जी अभी जो तायन में आपके पास आ रही है डेना मेरियम के थ्रू जो हम तक पहुंच रही है, एक्चुअल सत्य जो है वो इसमें सीतायन में बताया जा रहा है। तो आप शुरुआत से अगर इसे सुन पाए तो यूट्यूब से सुन सकते हैं। आगे और हाँ, भी सुन आप लूंगी। और नई नई इसका चीजें। कैसे निकालूंगी मैं? इसका जैसे शैतान का कैसे निकालूंगी मैं? आप अभी ग्रुप में है ना, ध्यान सागर के ग्रुप में तो हैं आप? हाँ, मैं हूँ, अब भी हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट है ना, ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप डे वन अच्छा, से देख लेना फिर। ठीक है, ओके रामेश्वरी जी। मैं सबसे पहले तो आप ही से जुड़ी हूँ, तो मैंने जी। आपको देखते ही उस दिन कुंभ में का भी जब आप बोल रही थी, तो मैं भी थी उस मीटिंग में ना। तो हाँ मैंने कहा हाँ। चलो आपसे मिलना हो जाएगा। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो, सबसे पहले आप थी, फिर माधवी जी भी थी। और जी अब मुझे क्रिया योग में थोड़ा कहना चाहिए इंटरेस्ट है, उसकी मैं आग तह तक जाना चाहती हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं उसमें, स्वामी जी अच्छे से समझाते भी है, तो उसमें पूरा टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं कोई और नहीं, लेकिन मैं कभी कभी आपका और माधवी जी का देखती हूँ जब मुझे टाइम होता है। इसलिए मैंने ये पीछे इसे कैंसिल नहीं किया, आपने जुड़ा रखा है। जी जी। थैंक हाँ। यू। जुड़ा रखा है, आप जुड़े हैं, और हम्म, आप आए हैं तो बढ़िया है, आपने चुना है ये। हाँ, सच नहीं, चुना मेरी आदत में है। पहले तो मैं जुड़ती नहीं हूँ कहीं भी, और जुड़ती हूँ फिर उसे छोड़ती नहीं हूँ। मैं आपके ही लोगों के माध्यम से क्रिया योग में भी पहुंची हूँ। और क्रिया योग भी मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, मुझे लगभग 8 महीने हो गए हैं। और मैं अपने को ऊपर चढ़ते उतरते, मैं उसे प्रैक्टिकल कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक चलो यू आप थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप आप रामेश्वरी जी किस डेट को जा रही हैं कुंभ? जी जी, जा रहे हैं। नहीं, जा कब रहे जा रहे, कौन सी डेट को? 18, 19? हाँ हाँ, 18 की है। हाँ। तो हम तब महाकुंभ का जो मीटिंग रहेगा ना, उसमें हम बात ठीक करेंगे। है मैम, मुझे हाँ। विदा दीजिए, मेरी बिल्ली बहुत बोल रही है। हम्म। मैंने उसके लिए अच्छा, गेट बंद कर दिया, वो गेट पे बहुत बोल रही है। चलिए, हाँ ठीक है। ठीक है। आत्मबंधन में आत्मबंधन, आत्मबंधन। धन्यवाद चलो आत्मबंधन। धन्यवाद, वैसे मैं, सभी मास्टर्स का धन्यवाद यहाँ पर, जितने भी जुड़े हैं, और हमारे जो यूट्यूब से जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।